Hello everyone. We are here with a new video. This is chapter is professional commitment, and we have covered 4 parts before, and this would be the 5th part of this. You can watch previous videos and the whole teaching aptitude test videos on our playlist. So we'll have covered 70 questions in 4th part, and from 71st question we'll start today. So let's start. 71st question. Before that, I wanted to tell you, if you are new to this channel, please subscribe our channel. And we are covering the whole teaching aptitude test subject under our videos. So you can watch our playlist, and please subscribe this channel and share with your friends and give the benefit of your knowledge to everyone else too. Okay, so we'll start. 71st question. An educational honorary organization whose membership is open upon motivation to both men and women. See here, educational honorary organization open to both men and women, they are asking. So when we see in the options, option B is the correct option, Kappa Delta, but this fee is incorrectly printed here, because if Kappa Delta fee is there, this is this, then it would be the educational organization for male only. But the Pi organization, Pi is Pi is the one organization which is the honorary organization for teachers, and it is open for men and women both. Okay, so if the options in exams come like that, you have no option, but choose the Pi answer if it is available, Kappa Delta Pi. Okay, you can Google it over there. And it was the organization to honor people in teaching profession, and it was started in 1911. Okay, this much is enough. 72, question number 72. The code of ethics of the teacher permits him to. So when we look in the answer options, we have to find the closest one. So answer would be B, participate in politics outside the classroom. You can read the options by pausing the video. Okay, we'll move towards 73rd question. A teacher's first duty is to. Answer would be B. Teacher's first duty is towards his students. Okay. 74th question. A democratic classroom is one in which. Answer would be D. No action is taken unless all members are in full agreement. There can be majority, okay, but in the options available we need to find the best option. So answer would be D. Okay, we'll move on the next question. 75th. The ground rules for the classroom should be established by. We are talking about the classroom, not the whole school. So answer would be pupils and teacher. Okay, answer would be C. 76th question. The most important function of the teacher is to. What is the most important function of the teacher? This is what he is trying to ask कि एक अध्यापक का सबसे important function क्या होता है, क्या कार्य होता है. तो आंसर वुड बी डी, गाइड प्यूपिल ग्रोथ. अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ग्रोथ का डायरेक्शन देना, ठीक है, कि वो अच्छे तरीके से ग्रो करें, डेवलप हो, उनका विकास अच्छे से हो. ठीक है. 77th. Which of the following duties is least likely to be required of all teachers? कि least likely मतलब इन सब में सबसे कम कौन सी ज़रूरत है जो टीचर्स को पूरा करने की आवश्यकता है अपने कर्तव्यों में से. तो 77th का आंसर होगा A, visiting the homes of the pupils. Okay. 78th question. The most important task in teaching is. The most important task in teaching is. Answer would be B, directing pupil in development of experiences. ठीक है, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिशा देना, उनके एक्सपीरियंसेस को दिशा देना, उनके अनुभवों को दिशा देना. ओके. 79th question. The teacher's primary responsibility lies in.
एक अध्यापक की प्राथमिक जिम्मेदारी निम्न में से किसमें निहित है? आंसर वुड बी ए, प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, शिक्षा से संबंधित अनुभवों की योजना बनाना, उनको प्लान करना। ठीक है, ये सब भी काम है टीचर के ही, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आंसर वुड बी ए फॉर दिस। ओके, यू कैन सी इट हियर, 79th क्वेश्चन। ओके, द टीचर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन। ओके, विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 80th क्वेश्चन। द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज of the classroom teacher is to, major responsibility। okay, so 80th का आंसर होगा सी, ट्रांसमिट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि अपना जो विषय है उसकी जो नॉलेज, उसका जो ज्ञान है वो कन्वे करे, ट्रांसमिट करे अपने स्टूडेंट्स को, ये उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, वील मूव ऑन 81st क्वेश्चन। द टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिगार्ड टू स्टैंडर्ड्स इस टू, कि मानकों के संदर्भ में जो अध्यापक है उसकी जिम्मेदारी क्या है? ठीक है, तो 81st का आंसर होगा बी, हेल्प चिल्ड्रन टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर देमसेल्व्स इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, कि जो बच्चे हैं उनकी मदद करे किस कार्य में, कि अपने मानक निर्धारित करे वो स्वयं के भी और कलेक्टिवली भी। ठीक है, विल मूव ऑन 82nd क्वेश्चन। The teacher's responsibility with regard to teaching material is to, कि टीचिंग मटेरियल जो है, अध्यापन का जो सामग्री है उससे संबंधित क्या जिम्मेदारी होती है एक अध्यापक की? आपने ये ऑप्शंस पढ़ लिए होंगे, हम आगे के ऑप्शंस दिखा देते हैं आपको। सो आंसर ऑफ द 82nd क्वेश्चन इज डी, पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन, ordering and handling of teaching materials। you should focus on the word participate। okay, spoon feeding की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। so teacher should participate in selection, ordering and handling of teaching material। okay, 83rd question। the primary duty of classroom teacher as far as a typical or exceptional pupils are concerned। we are talking about what kind of pupils he have, what kind of students he have, कि मतलब उसके जो विद्यार्थी हैं वो कैसे हैं, वो टिपिकल और एक्सेप्शनल है। तो ऐसे में एक अध्यापक की, क्लासरूम टीचर की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या हो जाती है? ठीक है, तो 83rd क्वेश्चन जो है उसका आंसर है डी, लोकेट केसेस दैट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन, कि ऐसे जो केसेस हैं, स्टूडेंट्स जो एक्सेप्शनल हैं किसी न किसी केस में, उनको लोकेट करे, उनको आइडेंटिफाई करे, पहचाने और उनको स्पेशल अटेंशन की जिनको ज़रूरत है उनको पहचाने, उनके अकॉर्डिंग उनको ढाले अपने टीचिंग स्किल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लोकेट केसेस दैट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन वुड बी डी, आंसर वुड बी डी। ओके, विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 84th। विच इज़ नॉट ट्रू ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स, कि अधिकतर अध्यापकों के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो 84th क्वेश्चन का आंसर होगा डी, दे आर रेडिकल इन पॉलिटिकल बिलीफ। ये अधिकतर अध्यापकों के लिए सही नहीं है और अध्यापक को रेडिकल होना भी नहीं चाहिए, उसे अपने स्टूडेंट्स को सही क्या ये बताना चाहिए और उसके आगे डिसाइड करने का काम स्टूडेंट्स खुद कर सकते हैं। ठीक है, 85th। मोर मेन देन द वुमेन टीचर्स आर यूजुअली फाउंड एट दी, कि अधिकतर पुरुष महिलाओं की तुलना में निम्न में से कौन से स्कूल लेवल में पाए जाते हैं? आंसर वुड बी ए, प्राइमरी लेवल। 86th क्वेश्चन। हाउ वुड यू एलिमिनेट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ क्लासरूम टू मेक अ होमोजीनस क्लासरूम, कि आप कौन से इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अपने निजी जो अलगाव हैं उनको दूर करेंगे ताकि एक होमोजीनस क्लासरूम, एक समतावादी क्लासरूम है वो आपके सामने आ सके? तो 86 का आंसर होगा बी। ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होम असाइनमेंट्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अपने इंटरेस्ट के बेस पे उनके होम असाइनमेंट्स दिए जाएं, सबको अलग अलग, और उनको अच्छे से वो कवर अप कर सकें। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, अपने जो निजी उनमें अलग 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 क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, 87th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइटल टू
टीचिंग सक्सेस कि निम्न में से कौन सा है जो एक अध्यापन की सफलता के लिए, टीचिंग की सक्सेस के लिए सबसे आवश्यक है। तो 87 का आंसर होगा डी, बीइंग एबल टू स्पीक ग्रामेटिकली करेक्ट। हमें देखिए सबसे क्लोजेस्ट आंसर देखना है इनमें, तो आप बाकी सारे क्वेश्चंस ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि इसमें डी ही है जिसे हम क्लोजेस्ट मान सकते हैं। ठीक है, वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 88th। दी हैप्पीएस्ट टीचर्स आर यूजुअली दोज हु, कि जो सबसे खुशनुमा अध्यापक होते हैं वो सामान्यतः कौन से प्रकार के अध्यापक होते हैं, निम्न में से हमें ऑप्शंस में से बताना है। तो 88 का आंसर होगा सी, लाइक टू टीच बट हैव अदर इंटरेस्ट एंड हॉबीज, कि मतलब उनको अध्यापन कार्य पसंद है लेकिन उनके अपने अलग इंटरेस्ट और हॉबीज भी हैं, मतलब वो अध्यापन के अलावा भी कोई और कार्य करके खुश रहते हैं। ठीक है, वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 89th क्वेश्चन। स्कूल चिल्ड्रन आर लाइकली टू सफर द वर्स्ट इफेक्ट्स एजुकेशनली फ्रॉम अ टीचर हु, कि जो स्कूल के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको सबसे बुरा प्रभाव शैक्षणिक रूप से किस प्रकार के अध्यापक से पड़ता है, एजुकेशनली कौन सा ऐसा टीचर है जिसकी वजह से स्कूल चिल्ड्रन सबसे बुरे तरीके से प्रभावित होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा 89th का ए है, इज़ एन इमोशनली इमेच्योर इंडिविजुअल, कि जो स्वयं खुद के इमोशंस को हैंडल नहीं कर सकता और स्टूडेंट्स की बोली हुई किसी बात को पॉजिटिवली नहीं ढाल सकता, टर्न आउट व्हेन ही कांट इवन टर्न इट इन अ पॉजिटिव मैनर। तो ऐसे टीचर से स्टूडेंट्स पर सबसे वर्स्ट इफेक्ट्स पड़ते हैं। ओके, अ टीचर मस्ट बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग। 90th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हार्ट्स was a scientist related to these things. I'm habitual of speaking scientist. He was a researcher. Okay, so according to heart study, the most frequently mentioned reason for not liking a teacher is that he, कि इनकी स्टडी के अनुसार निम्न में से कौन सा सबसे फ्रीक्वेंट रीज़न है, सबसे अधिक छात्रों ने मेंशन किया है कि वो किसी अध्यापक को क्यों पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा डी, इज़ अनरीजनेबल एंड पार्शियल, कि जो उनकी जो किए गए कार्य हैं वो एक तो रीजनेबल नहीं है, रीजनेबल यानी तार्किक नहीं है, और वो पार्शियल है, बायस्ड है, उनका झुकाव किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के हमने 90 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही, और हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के, इंटरपर्सनल रिलेशंस का 5th पार्ट होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल एंड वील अपलोड इट टुमारो। ओके, एंड तब तक आप पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, अपना प्रेरणा का स्तर बनाए रखिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड।